اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ 14 اراکین کے دستخط ہیں۔ اس وقت جام کمال یار محمد رند میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مہینے میں کچھ ایسی سیاسی حوالے سے معاملات ہیں جن کے حوالے سے ہمارے بھی تحفظات تھے، ہمارے دوستوں کے بھی تحفظات تھے، اور بہت سارے ایسے بلوچستان کے لوگوں کے بھی تحفظات تھے جو ایک اچھی کارکردگی کی بنیاد پہ حکومت کو بلوچستان میں نہیں دیکھ رہے تھے۔ لیکن ہم نے امید اس بات پہ ہی رکھی کہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے حالات بہتر ہوں گے، اور بار بار آپ کو یاد ہوگا سردار یار محمد رند صاحب ہوں، میں ہوں، ہمارے پارٹی کے دوسرے اراکین ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، ہم سب نے یہ موقف رکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں، اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ کوئی حکومت اس طرح سے جائے اور دوسری حکومت آئے، پھر دوسری حکومت جائے، تیسری آئے۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا، آپ دوستوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ ہم اس بہتری کو بلوچستان میں نہیں دیکھ رہے۔ اور پھر ہم نے ایک پریس کانفرنس آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاق میں جب عدم اعتماد کی تحریک چلی تو کئی پریس کانفرنس سردار یار محمد رند صاحب نے کیے، میں نے کیے، ہمارے پارٹی کے لوگوں نے کیے، دوستوں نے کیے، اور بار بار ہم نے کہا کہ اس زیادتی کو جو بلوچستان کے ساتھ ہو رہی ہے ہم اس کو مزید نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، اور اس پہ مزید خاموشی بھی اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری خاموشی کا مقصد اور مطلب پھر یہ لیا جائے گا کہ ہم اس سارے چیزوں میں شریک ہیں، اور ہم اس بات میں شریک نہ ہرگز پہلے دن تھے اور نہ بعد میں رہے ہیں۔ اور اسی دور میں آپ نے دیکھا ہوگا جب عدم اعتماد کی تحریک وفاق میں چلی تو وہاں پہ بھی مختلف پارٹیوں کے ساتھ جب ہمارا رابطہ ہوا، ہم نے ایک پوائنٹ ایجنڈا رکھا، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہو، JUIF کی طرف ہو، پیپلز پارٹی کی طرف ہو، یا باقی پارلیمنٹری جتنی پارٹیز تھے ان کے ساتھ تھا۔ ہم نے کہا جی ہمارا ایجنڈا ہے کہ بلوچستان کی حکومت بلوچستان کے اندر سیاسی حوالے سے بلوچستان کی بہتری کے جو تبدیلی ہے اس میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، کیونکہ کم از کم ہم تو اس چیز کو برداشت زیادہ مزید اب نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہوا، بلوچستان عوامی پارٹی وفاق میں اسی ایک ایجنڈا کے حوالے سے ساتھ گئی، اور ہمارے جو MNAs تھے انہوں نے اس تحریک کے حوالے سے اپنا ایک موقف رکھا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہمیں گورنر چاہیے، ہمیں چیف سیکرٹری چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے۔ ہم نے کہا بلوچستان کے اندر ایک حکومت کی تبدیلی آئے گی، اور اس کے بعد جو بھی مشاورت ہوگی ہم سب ساتھ ہیں۔ اور اسی بنا پہ میں بڑا مشکور ہوں کہ ان ساری سیاسی جماعتوں نے، جس میں PDM کے سارے سیاسی جماعت شامل تھے، ان سب نے اس پہ یقین دہانی بھی کروائی، اور آپ نے میڈیا کے تھرو دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے بار بار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس حوالے کا ایک پورا کھلا میسج بھی دیا۔ تو ہم سارے دوست تھے، ہم سب نے مشورہ کیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قدم اٹھانا ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اس پہ دستخط ہمارے ساتھ ہیں۔ اس ساری دستخط جو ہمارے 14 آج موجود ہیں، یہ ہمارا وہ ہم خیال گروپ ہے جو پہلے دن سے ایک ساتھ تھا۔ آج ہم نے وہ پہلا قدم لیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی امید پہ ہیں کہ جو وعدہ ہم سے اس پلیٹ فارم پہ کیا گیا، انشاءاللہ اس میں اس تحریک میں وہ دوست بھی آئیں گے، اور پھر مشترکہ طور پہ جو بھی ایک فیصلہ ہوگا، چاہے اس میں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہو، حکومت کا ہو، اس کے طریقہ کار کا ہو، پھر یہ ساری جماعتیں انشاءاللہ مشترکہ طور پہ لیں گی اور آگے انشاءاللہ بڑھیں گی۔ یہ بڑا سٹیپ ہے سر۔ آپ نے جو PDM کی کمپوننٹ پارٹیز ہے، جس میں BNP ہے، JUI ہے، ANP ہے، ان کو آن بورڈ لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ ANP تو خیر آپ کے ساتھ موجود ہے، ان دو جماعتوں کی بات کریں۔ دیکھیے میں اس میں ایک بات پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ جب بلوچستان عوامی پارٹی اور ساتھ ساتھ سردار رند صاحب اور باقی دوست، ہم جب اس تحریک کے حوالے سے ان سربراہوں سے، جس میں میاں شہباز شریف، فضل الرحمان صاحب، ساتھ ساتھ زرداری صاحب تھے، ہم جب ملے تو ہم نے اپنا یہی بیانیہ رکھا، اور اسی بیانی کے اوپر ہمیں یقین دہانی بھی اسی بات کی ملی کہ بلوچستان کے اندر اگر آپ سب تبدیلی چاہتے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک چیز بڑی ظاہر ہے کہ اس گروپ نے اس سارے تحریک میں تو ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا یہ ہمارا موجودہ گروپ ہے جو سارے تحریک میں آگے تھی، اور اسی ایجنڈا پہ آگے تھی کہ اس تبدیلی کو لانا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہم سے وہ وعدہ ہوا ہے،
इंशाल्लाह उसको वफा करने के लिए वो भी हमारे साथ आए। जाम साहब ये तीसरी मरतबा तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, इसके मनफी असरात बलूचिस्तान के अवाम पर नहीं पड़ेंगे? ये दूसरी तब्दीली है। पहली तो हुकूमत बनी फिर एक वही है। देखिए एक चीज़ में सियासत में हमारे लिए यकीनी तौर पर एक बड़ा लम्हे फ़िक्रिया बनता है कि जी इतनी तब्दीलियाँ दुनिया में अगर आप देखें तो ऐसी सियासी तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म और ऐसी काबीनाओं में बहुत आती रहती हैं। हरगिज़ ये भी तो नहीं हो सकता कि अगर बलूचिस्तान या पाकिस्तान नुकसान में जा रहा है तो हम कहें कि हू बहू एक ही हुकूमत 5 साल पूरी करे। हाँ, 5 साल की मुद्दत को एक टेन्योर को पूरा ज़रूर करना चाहिए। उसमें अगर 2 वज़ीर आला बनते हैं, 3 बनते हैं, 3 वज़ीर आज़म बनते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, 5 साला उस इक़्तिदार को ख़त्म नहीं करना चाहिए। 5 साल का टेन्योर है। और आप देखें, आप मीडिया के दोस्त गवाह हैं, हमने कई बार इस हुकूमत को बार बार कहा कि आपके कई इक़दामात ऐसे हैं जो कि बलूचिस्तान के लिए बिल्कुल सही नहीं है और हमें वो सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। तो क्या हम 1 साल 1.5 साल मज़ीद बर्दाश्त करें? एक बजट आने वाला है, बलूचिस्तान के नौजवानों की नौकरियों का मसला है, यहाँ तरक्याती कामों का मसला है, यहाँ वफाक से अपनी चीज़ों को मनवाने का मकसद है। अगर ये नॉन सीरियस गवर्नेंस के साथ अगर हमने बर्दाश्त करना है तो बाकी बर्दाश्त कर लें। कम अज़ कम हम जो मुत्तफ़क़ा तौर पे सारे दोस्त हैं, हम इस बात पे राज़ी हैं। सरदार साहब आप क्या कहेंगे एचडीपी का हवाले से आप बताइए सर। आपकी तब्दीली के वक्त लगाए गए सरदार साहब से सरदार साहब ये इल्ज़ामात वो लगाए जा रहे हैं जो आपकी खिलाफ जब तहरीक एतमाद आई तब थे। हम उसे सही समझे, आज सही समझे या इसे अना की जंग समझे? मेरे ख्याल में आपको सवाल करते हुए समझ नहीं आई। सरदार साहब एग्जैक्टली मैं तरदीद करता हूँ, रिकॉर्ड है, आप हमें साबित करके दें कि हमने यही इल्ज़ामात जाम साहब पे लगाए थे। जाम साहब के साथ हमारे इख्तिलाफात थे, उस वक्त भी हमने कोशिश की, 3.5 साल तक हमने बर्दाश्त किया, जाम साहब को हम बताते रहे, मगर बदकिस्मती से हालात आखिर इस नहज पे पड़े कि हमें एक तब्दीली के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। मगर वो हम ये चाहते थे कि जो काम जाम साहब के वक्त में नहीं हो रहे थे वो अब होने चाहिए। मगर वहाँ जाम साहब, अब अगर हम देखते हैं तो जाम साहब हमें फरिश्ता नज़र आते हैं। जिस तरह की करप्शन हो रही है, जिस तरफ की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और बैड गवर्नेंस का जो एग्जाम्पल यहाँ दिए जा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि उस वक्त एक बहुत बेहतर गवर्नमेंट थी, मगर हमारी, क्योंकि हम सियासी लोग थे, हम आवाम से वादे करके आए थे, आवाम से कमिटमेंट करके आए थे, उस कमिटमेंट को निभाने के हम पाबंद हैं। तो अब भी हम जो ला रहे हैं, हमें कोई कदू साहब से कोई ज़ातियात नहीं है, मगर उनके तर्ज हुक्मरानी पे हमें एतराज़ात हैं। तो मैं थोड़ा रिकॉर्ड वाज़ा कर दूं, हमने कभी भी जाम साहब पे करप्शन या ऑनेस्टी पे कभी भी सवाल नहीं उठाए थे। सर एचडीपी का पोजीशन क्या है? सरदार साहब की जो तहरीक इंसाफ है उसका बयानिया जो है इमरान खान के साथ आपका वो क्यों के या आपका पीडीएम के साथ बयानिया वो हो रहा है। बलूचिस्तान में सूरत हाल आपके हाथ में, आप पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, और कितने लोग आपके साथ हैं? इंशाल्लाह वो अभी थोड़ा सा टाइम है, आपने अब देख लिया कि कितने लोग मेरे साथ हैं। इस वक्त मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, और सबसे बड़ी बात कि अगर इमरान खान का जो बयानिया था मैं उससे इत्फाक करता तो मैं अपनी एडवाइजरी से स्पेशल असिस्टेंट होना प्राइम मिनिस्टर के मैं क्यों रिज़ाइन करता। तो इसका मकसद ये है कि खान साहब के साथ उस वक्त से हमने कोशिश की, स्ट्रगल की, और बलूचिस्तान की एक पार्लिमानी पार्टी, एक काउंसलर की पार्टी से उठा के हमने उसको पार्लिमानी पार्टी बनाया, दोस्तों को जमा किया हमने। मगर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादती की बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के अवाम से, उन लोगों को सिर्फ लोगों को टीवी पे दिखाने के लिए चंद बलूचिस्तान के लोगों को लाए, बलूचिस्तान के अवाम। और मुझे अफसोस है कि पीटीआई के वो वर्कर जिन्होंने 20-20, 25-25 साल पीटीआई के लिए सर्व किए, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। और मुर्गे और कट्टे भी हैं ना, वो जो है ना यहाँ के जो खान साहब के जो चहीते हैं, जो उनको कहता है ये मेरे टाइगर्स हैं, वो खा गए। सरदार साहब कसम कुरान पे यकीन दयानियाँ हुई थी, इस वक्त जो यकीन दयानियाँ हैं उनकी नौयत क्या है? देखिए मैं आपको बात बताऊं, ना हमने कसम किया है ना कुरान किया है। इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने पे और अपने ख़ानदान की रवायतों पे फ़ख्र है कि जो बात मेरी ज़बान से निकलेगी इंशाअल्लाह ताला वो कसम और कुरान पे भी वही होगी जो मैं कमिटमेंट करूँगा अपनी ज़बान पर। ये बात देंगी जो जिनके आपके जो साथ खड़े हैं वो उनको फंड देने पे जैसे वलीदी साहब ने कहा कि फंड ना मिलेंगे, तो वो जमाती किस तरह साथ देंगे? उसी के साथ ये सवाल है कि आप
हुकूमत जब आपकी ख़त्म हुई थी तो वो इत्तेहादियों के रवैये की वजह से नहीं थे, वो आपकी अपनी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात थे, वो आज भी बदस्तूर कायम है। 16 अरकान ने पार्लिमानी लीडर बनाया है कुद्दूस बजींजो को, और अब आप अपने जो साथ अपने स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं इत्तेहादी तो वही जो पहले भी आपके साथ खड़े थे। तो इसका मतलब कि जमीयत या BNP जिन पर आपके इल्ज़ामात थे, जिनकी वजह से ज़रूर बलेदी साहब ने भी इख्तिलाफ किया, तो क्या उनको वापस शामिल करके हुकूमत बनाएंगे? और मैं बार थोड़ा एक दफ़ा जवाब दे दूँ ताकि थोड़ा फिर याद नहीं रहेगा। देखिए, एक चीज़ मैं कंप्लीट साथ साथ ये करता रहूँ कि मैं शायद आप मेरी पहली वाली बात पे गौर नहीं कर रहे कि जिस अपोजिशन की आप बात करें, यकीनी तौर पे हमारे हुकूमत के जाने से पहले हम अपोजिशन में उनके साथ थे, लेकिन जब हमारी हुकूमत गई और ये सिलसिला तकरीबन कोई 4-5 महीने के लिए आगे बढ़ा तो आपने बाद में देखा होगा कि यही हमारा ग्रुप था। फिर वो PDM के साथ मिली और फिर हमने अपने जो सारे मौक़िफ़ है उसको पेश किया, और हमारे प्रेस और आज भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो मेंबरान हैं वो वफाक में उन्हीं जमातों के साथ वहाँ हुकूमत में है जिनकी बात आप यहाँ कर रहे हैं। तो हम तो उसको अपोजिशन की जमात नहीं मान रहे, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त हम अपोजिशन उस जमात को समझ रहे हैं जो साहिब इक़्तिदार है। तो बाकी तो हम सारे एक साथ हैं, बस हमने वो एक लाएमल को तय करना है और उस पर काम करना है। देखिए, एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यकीनी तौर पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर आज भी देखिए उन्होंने ये जब 6-8 महीने का अरसा गुजरा है तो हमने ये दोस्तों की सारी चीज़ें इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आज ये कदम उठाया है। अगर आज हमारे साथ लोग ना हो या उनके ख्वाहिशात हमारे साथ ना हो तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि हम अदम एतमाद पेश करें, इस तरह पेश करें। तो दोस्तों का मशवरा है, दोस्तों का साथ है और हमने ये पहला स्टेप लिया है। और इंशाल्लाह देखिए, मैं उस बात को दोहराऊँगा, कुद्दूस बजींजो साहब यकीनी तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक मेंबर हैं, एक MPA हैं और वज़ीर आला हैं, लेकिन कुद्दूस बजींजो साहब के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी हर हवाले से, जो बार बार हमने उनको कहा कि वो पूरी होनी चाहिए। और वो क्या थी? बलूचिस्तान में एक अच्छे तर्ज अमल की हुकूमत को कायम करना, दोस्तों को ले जाना। दोस्त ने किसी ने बात की कि आपसे एतराज़ था कि आप कम मिलते थे, मैंने कहा कम मिलना फिर भी अच्छा है, ना मिलना ना होना और उससे भी ख़राब है। तो बात यह है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हर हवाले से एक नई बात ये भी सामने हम ला रहे हैं कि गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल भी होना चाहिए, अपने पार्टी के अंदर भी अकाउंटेबल होना। देखें, मैंने इस्तीफ़ा दिया, ठीक है, हमने अपनी पूरी कोशिश की। जहां मैंने महसूस किया कि हमारी पार्टी अब ख़राबी की तरफ जा रही है, मैंने एक स्टेप लिया और मैंने रिज़ाइन किया। और उसके बाद आपने ये नहीं देखा कि मैंने कोई एक तरीक़ेकार बनाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज दोस्तों का सबका एक मशवरा है और मुश्तरका तौर पे हम इस सारे मुहिम के साथ आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसी बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए ले रहे हैं। और यकीनी तौर पे वो जमातें जो PDM का हिस्सा हैं, जो वफाक में जिनके साथ हमारी मशावरत थी, और इंशाल्लाह ताला मैं इस बात पे कहूँगा कि जिस तरह हमारा उनके साथ एक राब्ता पहले था, उस दौरान था, और जो बातें थी वो इंशाल्लाह अब मुकम्मल ज़रूर होंगी। PDM की जो जमातें हैं उन्होंने इस मूव में आपका साथ नहीं दिया, फिर आप लोगों का क्या लाए? देखिए, सियासत में कबल अज़मत एक बेसिकली बात होगी। मैं वही बात फिर से करूँगा कि हम यहाँ, जैसे सरदार साहब ने कहा कि हमारी ज़बान सियासत में एक दूसरे के साथ वादा और बातें हैं। हमने कमिटमेंट अपनी आपने हमारी कोई रिटन कमिटमेंट तो BAP की नहीं देखी है कि वफाकी PDM के साथ थी। एक ज़बान थी, एक ज़बान पे हमारे लोग कायम रहे और उसी ज़बान और उसी वादा और उसी स्टेटमेंट के हवाले से हम ये उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह ये भी पूरा होगा। जाम साहब, कोई सिग्नल भी है या खुद से कर रहे हैं सब कुछ? MMA का माजी ये बताता है। इसमें असगर खान साहब भी थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी भी हमारे साथ शामिल है। थोड़ा सा आगे यकीनन जिस तरह जाम साहब ने और सरदार साहब ने बड़ी डिटेल से बात की, उन तमाम वजूहात पे बड़ी तफसील से रोशनी डाली कि आज हम 6 महीने के बाद इस नतीजे पे क्यों पहुँचे हैं। तो यकीनन जिस तरह जाम साहब और सरदार साहब ने बात की, एक बात मैं कहूँ कि हमारे यहाँ सियासत कमिटमेंट पे चलती है, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होते। तो यकीनन इस मुल्क के हवाले से पूरे मुल्क की सतह पे जो पूरा मुल्क माशी लिहाज से, ख़ारिजी लिहाज से, दाखिली लिहाज से जिन मसाइल और तकालीफ से दो चार था, तो पूरे मुल्क के संजीदा सियासी क़ुव्वतों ने मिल बैठ के सलाह व मशवरा करके बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ले के अवामी नेशनल पार्टी तक, PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक तक, मुस्लिम लीग नून तक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक, इवन मुस्लिम लीग काब तक, सब ने सर जोड़ के
उस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर ली जो वफाक की सतह पे पूरा मुल्क उसे दो चार था। तो यही वो कमिटमेंट थी, लेकिन बदबख्ताना हमारे सूबाई हुकूमत ने उस बदबख्ती से जान छुड़ाने की उस तराजू में भी अपना वज़न उस पलड़े में डाला जिनसे पूरा मुश्किल दो चार से था। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 में से 4 अरकान, जिस तरह जाम साहब ने कहा, उन्होंने पाकिस्तान को, इस मुल्क की दाखिला व खारजा पॉलिसी को, मईशत को सही सिमत पर डालने के लिए PDM का साथ दिया। और आज आप देख रहे हैं कि मरकज़ी सतह पे PDM की और पूरे मुल्क की कोलिशन हुकूमत है। तो इसी तरीके से ये बलूचिस्तान की सतह पे भी महसूस हुई। उस वक्त ये कमिटमेंट हुआ था कि इंशाअल्लाह अगर वफाक में बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस मुस्बत तब्दीली की पलड़े में अपना वज़न डालेगी तो इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में हम भी मुस्बत तब्दीली के लिए आपका साथ देंगे। तो आज गुनाह से छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया है। मज़ीद इस गुनाह में हमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए और उस कमिटमेंट को भी पूरा करना चाहिए। आप देख ले, आपके डेरा बुगटी में दर्जनों के हिसाब से रोज़ाना लोग मर रहे हैं। आपका इस वक्त तक कोई भी हुकूमत बलूचिस्तान का नुमाइंदा उधर गया नहीं है। आपका पूरा हुकूमत और हुकूमती मशीनरी सो रही है जब आपके यहाँ लाशें पे लाशें गिर रही हो और वो इलाज मालिजे बर वक्त मुहैया न करने से, पानी जैसी ज़रूरत बर वक्त मुहैया न करने से। तो आप हमें बता दें, इस सोए हुए हुकूमत से आप मज़ीद क्या तवक्को कर सकते हैं? यानी ये तब्दीली, अगर मैं ये कहूँ, ये बलूचिस्तान के उस डेवलपमेंट को जो अधूरा हो के रह गया था दोबारा ट्रैक पे डालने की तब्दीली है। पूरे बलूचिस्तान के तमाम कदावर सियासी जमातों से, यकीनन जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, ये एक हिस्ट्री रखने वाली जमातें हैं और यकीनन इनके अकाबरीन की ख़ुद भी वफाक की सतह पर जो तब्दीली आ रही थी उस वक्त की स्टेटमेंट भी आपने पढ़े होंगे और हमारे कुछ बड़े बुज़ुर्ग साथियों ने यहाँ तक कहा कि ये तो गुनाह है और इस गुनाह कबीरा में हम शामिल नहीं है। तो मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ के डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए वक्त आया है कि हम बलूचिस्तान को एक दुरुस्त और मस्बत सिमत में डालने की कोशिश करें। सियासी बहरान हल करने की वाहिद सूरत जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस हैं और जितनी जल्दी हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे उतनी जल्दी स्टेबिलिटी है। अच्छा, ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर हुकूमत साजी इस वक्त तहरीके इंसाफ की तरजीह है या लॉन्ग मार्च के नतीजे में एक नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी तरजीह है? नहीं, हम तो इलेक्शंस ही चाहते हैं। हम चाहते हैं इलेक्शंस की तरफ बढ़े और इसका आसान तरीका यही है कि जो भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा वो असम्बली की डिसोल्यूशन की तरफ जाए। सो पहले मरहले में आसान यही लग रहा है कि आप अपना चीफ मिनिस्टर बनाएं और वो डिसोल्यूशन की तरफ। उन्होंने यही कहा है कि जो भी इमरान खान फैसला करेंगे वो उसके पाऊंगा। नसीर साहब ये बताएं कि पंजाब को 2 ऑफिसर चला रहे हैं, एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी पंजाब है। पहले तो ब्यूरोक्रेसी को PTI क्या मैसेज दे रही है इस अदालती फैसले के बाद, और दूसरा ये जो अदालती आप जा रहे हैं कल पिटीशन में, इस पे काम के लिंगर ऑन होने के कितने चांसेस? देखिए ये तो अब मेरी ख्वाहिश जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मेरी दरख्वास्त यही होगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि इतना बड़ा सूबा जो है वो हुकूमत के बगैर तो नहीं काम कर सकता। लिहाजा इसको डे टू डे आप सुन के जो है वो इसको जिस तरह से आपको पता ही अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं, तो इसको जो है वो पूरा आप सुने और जल्द अज जल्द इसका फैसला करें ताकि इस बहरान का खात्मा हो। जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी और IG का ताल्लुक है, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, वक्त बदल रहा है, वक्त बदल गया है। लिहाजा बदले हुए वक्त के मुताबिक आप मेरिट के ऊपर वापस आएंगे और जो फैसले भी आपने किए हैं, जो मेरिट से हट के किए हैं, उसको आप रिवर्स करें जल्द अज जल्द। ये जो आप इस वक्त तब्दीलियाँ और तैनातियाँ एक इलीगल चीफ मिनिस्टर के कहने के ऊपर कर रहे हैं, ये इस वक्त कानून के मुनाफी है और अगर इसको जारी रखा गया तो हम इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो करेंगे। ये बताइएगा, माजी में हम सुनते आए हैं एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दबाव दे रही है हुकूमत को कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाए जाए, आप इस खबर को कैसे देखें? देखिए जी, मुझे नहीं पता एस्टैब्लिशमेंट दबाव डाल रही है कि नहीं, लेकिन हर वो शख्स जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो,
तमाम लोग जो हैं वो इसी पे उनका कंसेंसस है कि जल्द इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के आइनी और सियासी बहरान का कोई हल नहीं। चौधरी साहब, माजी में हम सुनते आए थे तालिबान के हवाले से बैड तालिबान और गुड तालिबान। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हवाले से एक नई इस्तिलाह आई है, बैड डिसीजन और गुड डिसीजन। ये कब तक सियासी जमातें करती रहेंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि बड़ी आपने एक फजूल जो है वो एग्जाम्पल दी है। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही होते हैं, कोई फैसले सही होंगे, कोई फैसले गलत होंगे। जिन फैसलों को मसलन अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के फैसले को आप सही मान के चलेंगे तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग ख़राब है। तो जब भी आप ये बात करेंगे, इदारों के ऊपर हर एक का ट्रस्ट होता है, इदारों के बगैर तो मुल्क नहीं चलते। लेकिन ये होता ये है कि कभी फैसले सही होते हैं, कहीं गलत होते हैं। जो गलत होते हैं उन पर तनकीद होगी, जो सही है उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। इस बात का कितना चांस है कि जो एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी हुई थी, अब उसमें कोई रवाबत की बहाली का इम्कान है? इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, उसके बाद से जो है वो रवाबत से का कोई मसला नहीं है और किसी से भी कोई मसला नहीं है। हम तो समझते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इनके ऊपर भी बात हो इसके ऊपर भी बात, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और उन पे भी बात हो सकती है। लेकिन पहली शर्त यह है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें जो कि प्रेफरेबली सितंबर में होनी चाहिए और सितंबर में ही एक्चुअली इलेक्शन होने चाहिए। चौधरी साहब, ये बताएं कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसको तो किसी किस्म का ये लग नहीं रहा जेस्चर कि वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है। तो आप ये मुतालबा तो कर रहे हैं और वो इस वक्त जो पीटीआई का मोमेंटम है उसको तोड़ना चाहते हैं और ताकि ये लिंगर ऑन हो मामला। तो ये कैसे आप आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे? जिन टांगों के ऊपर वो खड़े हैं उस टांगों से तो मेरा ये ख्याल है कि वो खड़े ही रहना बड़ा उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने पीटीआई की टांगें क्या तोड़नी है। सो पहली बात ये है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और ये सब ने इन्होंने जो चूरन बेचा था उससे जिसने वो चूरन खाया उसको बदहज़मी हो गई और ये सिलसिला आपको पता है नहीं चल पा रहा। पाकिस्तान का इन्होंने अलबत्ता हमारी मईशत का भट्टा बिठा दिया और ये जो सारे इस वक्त कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं ये इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि हमें ला के किधर बिठा दिया है। सो ये इस वक्त आखिरी दिन चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसको ये हुकूमत जो है इसको खुद ही मान जाना चाहिए, ज़्यादा जिद में नहीं पड़ना। ये बताइएगा कि सीएम के लिए तो आप कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं, पंजाब के गवर्नर की क्या आईनी हैसियत है और सीएम को कौन कहेगा कि वो एतमाद का वोट ले? गवर्नर जो है उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन जो है वो फाइल कर दी है और ये सुबह हो रही है और इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो सदर ममलिकत के प्रोक्लेमेशन को रद्द नहीं कर सकता था। सो आई होप कि उमर चीमा विल बी बैक इंशाल्लाह गवर्नर हाउस में। साहब, आपने चूरन की बात की है तो चूरन के दो कलर होते हैं, एक काला चूरन और एक जो है वो समझो खाकी चूरन है। इन्होंने कौन सा चूरन बेचा, काला चूरन या दूसरा चूरन? आपके चूरन के ऊपर इल्म से मुझे लगा कि आप हकीम भी हैं। थैंक यू जी। तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और जो अहम ख्वाहिश उन्होंने इसका इजहार किया, उनका ये कहना है कि सितंबर में इलेक्शन होने चाहिए। अदालतों से मुताल्लिक़ उनसे सवाल किया गया कि बाज़ अदालती फैसलों पर आप शुक्रिया अदा करते हैं, बाज़ पर तनकीद करते हैं। तो फवाद चौधरी का ये कहना था इस सवाल पर कि अदालती फैसले ही होते हैं जिनकी बुनियाद पर राय कायम की जाती है। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज गुजरावाला में जलसे से खिताब करेंगे। जिन्ना स्टेडियम में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। जलसागाह से तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। राना, आज ही हम इस वक्त जिन्ना स्टेडियम में मौजूद हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे का पंडाल सजा रखा है। जलसागाह में कारकुनों की आमद भी मुसलसल जारी है। पीटीआई के कारकुनान रैलियों की सूरत में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए हैं। न सिर्फ जलसागाह में 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। जलसागाह की तरफ आने वाली तमाम जो शाहराहें हैं उन पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी बंद है। जो कारकुनान जलसागाह की तरफ आ रहे हैं वो उन्हें पैदल जलसागाह की तरफ आने की इजाज़त दी जा रही है। बहुत शुक्रिया राना आंसर। और जो ही जलसा शुरू होगा आपको इस मुतालिक आगाह करेंगे। डॉलर को काबू करने के लिए हुकूमत ने लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर कीमती ज़र मुबादला खर्च नहीं होने देंगे। गैर ज़रूरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी से रुपए की कदर में मजीद कमी नहीं होगी। 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 100% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। FPR के ज़राए के मुताबिक इम्पोर्टेड टाइल्स ड्यूटी 50% बढ़ाने,
दरामदी मशीनरी पर ड्यूटी 10% बढ़ाने और घरेलू इस्तेमाल की इम्पोर्टेड आइटम्स पर ड्यूटी 50% बढ़ाने की तजवीज़ पेश कर दी गई। बिजली बनाने के कारखानों के लिए दरामदी मशीनरी पर ड्यूटी 30% बढ़ाने, दरामदी स्टील और स्टील मसनूआत पर ड्यूटी की शरह में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई। नई तजावीज़ में सेरेमिक्स पर ड्यूटी की शरह में 40% इजाफे की तजवीज़ भी दी गई है। तर्जुमान CTD का कहना है कि कलदम सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी के हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक थरपारकर से है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी। तलहा, गुज़िश्ता रात से अब तक काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, क्या तफसील सामने आई है? देखिए, कुछ अहम लीड्स मिली हैं और उस पर CTD ने मुख्तलिफ टीम्स बनाई हैं। ये जो हलाक और मतलूब दहशतगर्द लादिनो, इसको हमने इसको पॉइंट आउट किया था और ये वही था जिसने वो उस ID का बटन दबाया था जिससे सदर में धमाका हुआ था और इसकी अब शनाख्त भी हो गई है। इसका ID कार्ड, दीगर चीज़ें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तहवील में लिए। जो दहशतगर्द भागा है उस हवाले से कुछ अहम शवाहिद मिले हैं। इस पर जो CTD की मुख्तलिफ टीम्स हैं वो बनाई गई हैं और उन्होंने इससे रवाना किया गया है। इनका ताल्लुक ज़िला थरपारकर के गांव छाछरों से था और जो कलदम अलैती पसंद तंजीम है उससे इनका ताल्लुक था। अंदरूनी सिंध टीमें जा रही हैं, हलाक दहशतगर्दों से मुतालिक मजीद मालूमात कुछ इकट्ठी की गई हैं और इस सिलसिले में अब एक जो हुकाम है बताते हैं कि जल्द एक जामे प्रेस रिलीज जारी की जाएगी जिसमें इनकी तमाम जो तफसीलात हैं माजी की भी और इसकी वो जारी की जाएंगी। कुछ अहम लीड मिली हैं, उसको भी शेयर नहीं किया जा रहा मीडिया से, और हुकाम बताते हैं कुछ अहम लीड जो उन पर काम हो रहा है। जो गुज़िश्ता रोज दहशतगर्द फरार हुआ था मोटरसाइकिल लेके, उस हवाले से कुछ अहम लीड्स हैं जिन पर काम हो रहा है। शुक्रिया आपका तलहा हाशमी। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का सिलसिला जारी है। दूसरे रोज 10वीं जमात के कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा लिया गया। इम्तहानी मराकज में नकल माफिया भी सरगर्म दिखाई दी। सुबह पर्चा एक बार फिर सोशल मीडिया पर गर्दिश करता दिखाई दिया। राना जावेद की रिपोर्ट देखिए। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दूसरे रोज 10वीं जमात का कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा लिया गया। कबल इस वक्त ही सोशल मीडिया पर हलशुदा पर्चे भी गर्दिश करते दिखाई दिए। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का दौरा किया, नकल करने वाले तलबा को वार्निंग भी दी। कहा पर्चे वक्त से पहले आउट होने की तहकीकात भी करेंगे। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज में नकल माफिया भी मुतहरिक दिखाई दी। कहीं तलबा हलशुदा जवाबात से और कहीं मोबाइल फोन से नकल करते नजर आए, जबकि रही सही कसर के इलेक्ट्रिक ने पूरी कर दी और दौरान इम्तिहान बिजली की अदम फराहमी से तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ा। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची।